निर्माण नो अभिगम कल्याण हो छात्र नो हरदम उच्च अभ्यास नो शिक्षण धाम महर्षि गुरुकुल महर्षि गुरुकुल महर्षि गुरुकुल महर्षि गुरुकुल महर्षि गुरुकुल. Kids, so today we are going to start chapter number 1, numerals 1 to 9. So before start numerals, I will tell you one number rhymes. So number 1, let's have some fun. Number 2, what shall we do? Number 3, set the bird free. Number 4, let's eat some more. Number 5, let's go for drive. Number 6, let me fix. Number 7, God lives in heaven. Number 8, close the gate. And number 9, are you fine? So now let's count the numbers from 1 to 9. So there are pictures, so many pictures is given. Okay, so one by one हम count करेंगे. So first is how many star is given here? Let's count it. 1. So there is 1 star is given. Next is given how many balls is given here? Let's count 1, 2. So there are 2 balls is given here. So next picture, which picture is this? This picture is the fish. So let's count it 1, 2, 3. So there are 3 fishes is given here. Next picture, flowers are given here. So count करते इसे अब हम 1 flower, 2 flower, 3 flower, 4 flowers. So there are 4 flower is given here. So next is balloons is given here. So how many balloons is this? So 1 balloon, 2 balloon, 3 balloon, 4 and 5 balloon is given here. So next picture is given triangle. So इसको हम count करते हैं अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 triangle is given here. Next is given circle. So next let's count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So कितने से यहाँ पे सर्कल्स दे रखे हैं? 7 सर्कल इज गिवन हियर. चलो नेक्स्ट पिक्चर अब हम काउंट करेंगे. लेट्स काउंट इट विथ मी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 picture is given here. And next is given lollipop. So count it with me. How many lollipop is given here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 lollipop is given here. So this is the numbers from 1 to 9. Chalo, shall we rewrite it once? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. चलो नेक्स्ट अब हम काउंट करेंगे. व्हाट इज दिस? स्टिक्स. चलो वन बाय वन मेरे साथ काउंट करेंगे अभी इसको हम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 stick is given here. So now
we will read the number with their number names. Do you know the spelling of 1 to 9 number? चलो सबसे पहले हम करेंगे स्पेलिंग ऑफ 1. O-N-E 1. Number 2 T-W-O 2. Number 3 T-H-R-E-E 3. Number 4 F-O-U-R 4. Number 5 F-I-V-E 5. Number 6 S-I-X 6. Number 7 S-E-V-E-N 7. Number 8 E-I-G-H-T 8. And number 9 N-I-N-E 9. चलो एक बार और मेरे साथ आप रिपीट करेंगे. O-N-E 1. 2 T-W-O 2. 3 T-H-R-E-E 3. 4 F-O-U-R 4. 5 F-I-V-E 5. 6 S-I-X 6. 7 S-E-V-E-N 7. 8 E-I-G-H-T 8. And 9 N-I-N-E 9. So 1 to 9 number हमने किए अभी. So now अब हम करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो. ओके, नेक्स्ट करेंगे हम द आइडिया ऑफ जीरो. द नंबर जीरो मीन्स, व्हाट इज जीरो? पता है आपको जीरो मीन्स क्या है? जीरो मीन्स इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट सो वी से दैट देर इज जीरो. ठीक है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. This is the coconut tree. There are 3 coconut on a tree. So one coconut is fell down. So how many coconut are left on a tree? 1, 2. So there are 2 coconut are left on a tree. Again 1 coconut are fell down. So how many coconut is left on a tree? Only 1 coconut is remaining on a tree. And again 1 coconut fell down. So how many coconut on a tree? There are nothing. जब कोई चीज नहीं है वहां पे, if there is no object, तो हम क्या कहेंगे उसे? जीरो. जीरो का स्पेलिंग है Z-E-R-O 0. ठीक है. सो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं. ठीक है, देर आर 1, 2, 3, 4, 5 cars in a park. How many cars in a park? There are 5 cars in a park. So 1 car is went away. So how many cars are left in a park? 1, 2, 3, 4. So there are 4 cars in a park. Again 1 car is went away. So how many cars are left? 1, 2,
3. So there are 3 cars in a park now. Then again one car is went away. So how many cars are in the park? 1, 2. So there are 2 cars in a park. And again one car went away. So अभी कितनी कार से कार पार्क में है? So there is only 1 car in a park. Again one car went away. So how many cars are in a park? Nothing. ठीक है, there is no car in a park. जब कोई चीज वहां पे नहीं है, it means there is no object. So we say that it is 0. Okay, I will take one more example. Okay, there are 4 apples. So I ate 1 apple. So how many apples are left with me? 1, 2, 3 apples are left with me. Then again I ate 1 apple. So how many apple is left with me? 1, 2. So there is 2 apples with me. Then again I ate 1 apple. So how many apples is left with me? Only 1 apple is left with me. Then again I ate 1 apple. So how many apple is now with me? Nothing. Okay? So there is no apple with me. So we say that is 0. So clear हो गया आपको? 0 means nothing. If there is no object, so we say that there is 0. So now we start new topic, bigger and smaller. Okay, bigger and smaller. Sometimes we compare the things with each other. जब कोई दो चीज एक दूसरे से कंपेयर होती है तो so one is a bigger and one is a smaller. Big means big in a size, है ना, जो साइज में बड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? बिगर. और जो साइज में स्मॉलर है उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल. इट मीन्स छोटा है. ठीक है. सो there are 2 rings with me. So which rings is bigger and which rings is smaller? Yes, this ring, blue ring is bigger than pink ring and a pink ring is smaller than big ring. ठीक है. जब दो चीज हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई चीज एक छोटी है और कोई चीज बड़ी है. तो कंपैरिजन कोई चीज दो चीज का जब कंपेयर करते हैं so one is a bigger and one is a smaller. Okay, I will take one example. Elephant, zebra and rabbit. There are 3 animals. ठीक है. एलिफेंट आप सबने देखा है. इट इज वेरी बिग इन साइज, है ना. देन जिब्रा एंड रैबिट. सो अगर हम एलिफेंट और जिब्रा को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो विच वन इज द बिगर एंड विच वन इज द स्मॉलर? एलिफेंट इज द बिगर देन जिब्रा, है ना. एलिफेंट जिब्रा से कैसा है साइज में? इट इज अ बिगर. कैसा है साइज में? बिगर है. एंड जिब्रा और अगर हम रैबिट को दोनों को कंपेयर करें तो विच वन इज द बिगर इन साइज? जिब्रा और रैबिट? Zebra, because zebra is bigger than rabbit. So zebra is bigger than rabbit. ठीक है.
अगर हम रेबिट और जिब्रा दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अगर हमको स्मॉल इन साइज देखना है तो विच वन इज स्मॉलर, रेबिट और जिब्रा? तो रेबिट इज स्मॉलर देन जिब्रा, ठीक है। अगर जिब्रा और रेबिट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों की साइज में कंपैरिजन में स्मॉल इन साइज कौन सा एनिमल है? रेबिट। सो वी से दैट रेबिट इज स्मॉलर देन जिब्रा। और अगर हम जिब्रा और एलिफेंट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिब्रा और अगर एलिफेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं, सो एलिफेंट एंड जिब्रा, सो विच वन इज स्मॉलर इन साइज? Zebra, because elephant is the very big in a size. So zebra, we say that zebra is the smaller than elephant. जब कोई भी चीज दो कंपैरिजन होता है तो स्मॉलर और बिगर साइज में कंपेयर होता है, ठीक है। तो आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज अ रेट, दिस इज अ कैट। तो रेट और कैट, अगर हम रेट और कैट का दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो रेट और कैट को कंपेयर करने विच वन इज अ स्मॉलर एंड विच वन इज अ बिगर? सो अगर ये दोनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो रेट इज अ स्मॉलर इन साइज देन कैट। रेट की साइज कैट से कैसी होती है? स्मॉलर है। बट अगर हम यहाँ देखें सो कैट इज द बिगर देन रेट। रेट कैसा है कैट से? स्मॉलर है। रेट की साइज कैसी है? स्मॉलर। अगर हम कैट और रेट दोनों को कर रहे हैं कंपेयर, सो अगर हमको बिगर साइज देखनी है देन विच वन इज अ बिगर? रेट। कैट इज द बिगर देन रेट, ठीक है। स्मॉलर और बिगर साइज में पता चला, स्मॉल मीन्स जो साइज में स्मॉल है, छोटा है, एंड बिग मीन्स जो साइज में बड़ा है, उसको हम बोलेंगे स्मॉलर और बिगर, ठीक है। आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। व्हाट इज दिस? एप्पल। व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल? यस, रेड, ठीक है। देन कंपेयर टू एप्पल हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, वाटरमेलन। देखा आप सबने वाटरमेलन? व्हाट इज द कलर ऑफ वाटरमेलन? ग्रीन, ठीक है। इट इज अ, अगर हम दोनों एप्पल और वाटरमेलन को कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, तो वाटरमेलन एप्पल से कैसा है साइज में? आप सबने देखा होगा वाटरमेलन है ना, इट इज अ बिग इन साइज। सो वाटरमेलन इज अ बिगर देन एप्पल। अगर एप्पल को हम देख रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो एप्पल की साइज वाटरमेलन से कैसी है? स्मॉल है। सो एप्पल है, एप्पल इज द स्मॉलर देन वाटरमेलन। एप्पल की साइज कैसी है? वाटरमेलन से स्मॉलर है, और वाटरमेलन की साइज एप्पल के कंपेयर में कैसी है? बिगर है। सो वी से दैट एप्पल इज द स्मॉलर देन वाटरमेलन। या तो हम अदर साइड में क्या बोलेंगे? वाटरमेलन इज द बिगर देन एप्पल, ठीक है। अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एप्पल कैसा है वाटरमेलन की कंपेयर में? स्मॉल है। और अगर वाटरमेलन को अगर हम देख रहे हैं तो वाटरमेलन की साइज कैसी है एप्पल के कंपेयर में? बिग। सो इट इज अ बिगर इन साइज एंड एप्पल इज अ स्मॉलर इन साइज, ठीक है। सो जब दो चीज कंपेयर होती है तो वी से दैट इट इज अ ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। तो साइज में अगर हमें पता चल गया, लेकिन अगर यही चीज अगर हमको नंबर में करनी है काउंट, सो वी यूज इट ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम करेंगे ग्रेटर देन एंड लेस देन। GREATER, greater than, and LESS, less, THAN, then, greater than and
less than. So we use the symbol for greater than and less than like this. This is the symbol of greater than and less than. तो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 तक अब हमने नंबर लिख लिया। अभी अब हम जब नंबर कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता है कि 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 5, देन 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 8 एंड 8 आफ्टर 9। ठीक है, हमने ये नंबर लिख लिए। ठीक है, अब जब हम नंबर को कंपैरिजन कर रहे हैं, सो आई विल टेक वन एग्जांपल। ठीक है, इन अ बॉक्स how many star is given in a box 1 2, so there are 2 star in a box. Then in other box how many star is given 1 2 3 4 5। तो अगर हम 2 और 5 को दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो किसमें ज्यादा है स्टार से? In which box there is a more star? Yes, in this box there are more star. So how many star is given there? 5 star is given there. So हम दोनों को जब नंबर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ स्टार कितने हैं 2 है, और यहाँ पे स्टार कितने दे रखे हैं 5 स्टार इज गिवन। सो दोनों को कंपैरिजन में कौन सा नंबर बड़ा हुआ 2 और 5। तो अगर हम यहाँ पे अब हमको यूज करना है सिंबल ऑफ ग्रेटर देन एंड लेस देन, तो कौन सा सिंबल यहाँ पे हम यूज करेंगे? विच वन? 2 इज अ स्मॉलर देन 5 बट 5 इज अ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे जब जो नंबर बड़ा होता है इन, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंबल लाइक दिस। ओपन सिंबल जो है वो कौन से नंबर के सामने रहेगा? हमेशा बिग नंबर के सामने। ठीक है, और जो नंबर स्मॉलर है उसके सामने सिंबल कैसा रहेगा? क्लोज सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज, ठीक है, what is this? Star, sorry, sun. So how many suns is given here? 1 2 3 suns is given here. And in other box moon. ठीक है, so how many moon is given? 1 2 3 4 5 6। so there are 6 moons and there are 3 suns। ठीक है, so which one is the more? 3 is the more और 6 is the more? 6 है ना, 6 ज्यादा है कि 3 ज्यादा है? अगर हम पिक्चर के अकॉर्डिंग देखें so there are only 3 suns and there are 6 moon। so ज्यादा कौन सा हुआ? 6। तो जो नंबर ज्यादा है उसके सामने हम सिंबल किसका लगाएंगे? ग्रेटर देन। सो 3 इज अ स्मॉलर देन 6। अदर वे वी से दैट 6 इज अ ग्रेटर देन 3। जो नंबर ज्यादा है इन, तो उसके सामने हम सिंबल कैसा रखते हैं? ओपन सिंबल। और जो नंबर कम है क्वालिटी उसमें हम रखेंगे क्लोज फिगर रखेंगे। ठीक है, I will take one more example. Balloons. 1 balloon, 2 balloon, 3 balloon, 4 balloon, 5 balloon. In a one box there are 5 balloons. 1 2 3 4 5। so यहाँ पे कितने बलून है?
5. In other box, 1 balloon, 2 balloon, 3 balloon, 4 balloon, 5 balloon, 6 balloons, 7 balloons and 8 balloons. ठीक है, अगेन हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे balloons कितने हैं? 8 balloons is given in one box and here there are 5 balloons given in a box. तो अगर हम ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो 5 और 8 है नंबर हमारे पास, तो दोनों में ज्यादा कौन सा हुआ नंबर? 5 और 8. तो जो नंबर ग्रेटर है उसके सामने सिंबल कैसा रहेगा? ओपन सिंबल. और जो नंबर स्मॉल है उसके सामने सिंबल कैसा रहेगा? क्लोज रहेगा. ठीक है, पता चला अभी? चलो अभी नेक्स्ट हम नंबर लेके करते हैं. ठीक है, 3 and 8. The next is 2 and 5. 9 and 1. 6 and 4. नंबर 5 में नंबर है हमारा 1 and 7. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 3 और 8 को, अब यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे पहले. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो नंबर यहाँ पे हमारा एक है 3 और नेक्स्ट नंबर है हमारा 8. तो अगर हम 3 और 8 को कंपेयर कर रहे हैं तो विच वन इज द ग्रेटर नंबर? 3 और 8. ठीक है, नंबर 3 के बाद क्या आता है? 4 5 6 7 देन आता है 8. तो हमारा नंबर बड़ा कौन सा हुआ है इसमें? 8. तो जो नंबर बड़ा है उसके सामने हम क्या रखेंगे? ओपन सिंबल. इट मींस वी से दैट 3 इज स्मॉलर देन 8. तो 8 इज द बिगर देन 3. ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज गिवन 2 and 5. तो अगर हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं 2 और 5 को, ठीक है, तो 2 और 5 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 4 and 5. तो जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हमारा 5, तो यहाँ पे है सिर्फ 2 और यहाँ पे हमारा 5 है. तो दोनों को कंपेयर में विच वन इज द ग्रेटर नंबर? 2 और 5 5. सो 5 के सामने सिंबल आएगा ग्रेटर देन. So 2 is smaller than 5 and in other way we say that 5 is greater than 2. चलो नेक्स्ट नंबर है हमारा 9 and 1. So नेक्स्ट नंबर है हमारा 1, नेक्स्ट है हमारा 9. So 1 और 9. तो 1 कैसा नंबर है? It is the smaller number and 9 is the biggest one digit number. तो 1 कैसा है? स्मॉलर है. 9 कैसा है? बिगर है. तो जो नंबर बिगर है उसकी साइज में हम सिंबल कैसा करेंगे? ओपन सिंबल. सो वी से दैट 9 इज द ग्रेटर देन 1. तो 1 इज द स्मॉलर देन 9. चलो नेक्स्ट नंबर 4 इज 6 and 4. चलो नेक्स्ट नंबर है हमारा 6 और 4. तो हम अगर 4 और 6 को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का अकॉर्डिंग में 4 और 6 में कौन ज्यादा नंबर है? 4 और 6. ठीक है, तो 4 कैसा है? 6 के कंपेयर में स्मॉलर है. ठीक है, 4 इज द लेस देन 6 एंड 6 इज द मोर देन 4. तो यहाँ पे हम सिंबल कैसा रखेंगे? 6 के सामने ओपन सिंबल. ठीक है, और 4 के सामने कैसा सिंबल रहेगा? क्लोज सिंबल रहेगा. चलो नेक्स्ट नंबर है हमारा 1 and 7. सो 1 हमारा कैसा नंबर है? इट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर. इट मीन्स 1 सबसे छोटा नंबर है हमारा. तो उसके कंपेयर में हमने नंबर लिया है यहाँ पे 7. तो 1 और 7 में बिग नंबर कौन सा हुआ? विच इज द ग्रेटर नंबर? 7 and 1 is the
लेस नंबर देन 7। सो 1 के सामने सिंबल कैसा रहेगा, ओपन सिंबल और क्लोज सिंबल। 1 इज द लेस देन 7, तो 1 के सामने सिंबल कैसा रहेगा, क्लोज। और 7 कैसा सिंबल है 1 के कंपेयर में, तो 7 इज द ग्रेटर नंबर। सो 7 के सामने सिंबल कैसा रहेगा, ओपन सिंबल रहेगा। ठीक है, तो पता चल गया ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, अगेन हम रिपीट करेंगे एक बार कि जो लेस देन है और ग्रेटर नंबर है। ठीक है, जब दो नंबर कंपेयर करते हैं हम, तो जो नंबर बिग होता है उसके सामने सिंबल कैसा आता है, ओपन सिंबल। और जो नंबर स्मॉल है उसके सामने कैसा आएगा, क्लोज सिंबल।